Praise the Lord once again. I'm glad to be here again because previously some problem had occurred with the network. So I have asked Shabnam ji to send me the invitation again so I can speak rest of the topic. So as you know, the topic is, are we ready for breakthroughs and blessings? So are we ready? God is going to bless us. God is going to give us success. God is going to give us so many blessings. Thank God the network is working now. And Shabnam ji, I welcome you and thank you for all the cooperation you have given, and God bless you. And I welcome Grace Burden sister also. You were there. I'm sorry there was some interruption. So I have restarted, but from that place where I left. So I hope you remember, or you can watch that portion first and then this portion. So I left, I think, where I was singing a song, जब से प्यारा यीशु आया. So that song I'll repeat with you because that's a lovely song. If I find that song, because yeah, I found it. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया. इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, खून देकर गुनाहों से है बचाया. तब से दिल मेरा मेरी खाया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. One more verse I'll sing. रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. So how nice our life is changed due to Jesus Christ, due to his sacrifice, due to his blood. And above all, it is God's love who has changed us and who didn't want us to go to the fire of hell. And now the English number, that is my favorite. Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. So we should always bless the Lord, because in Psalms we have seen David how many times he blesses the Lord.
so many times वो अगेन एंड अगेन प्रभु को आशीष देता है, बिकॉज जब प्रभु हमको आशीष देते हैं तो हमें भी उसको आशीष देनी चाहिए। और प्रभु चाहते हैं कि हम उनको आशीष दें, हम उनको थैंक्स बोलें। सो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा उसको प्रसन्न रखने के लिए हमें प्रभु को आशीष देना है और धन्यवाद देना है। सो जैसे कि आपने देखा कि आज का शीर्षक क्या है। आज का शीर्षक है द आर यू रेडी फॉर द ब्रेक थ्रू एंड द ब्लेसिंग्स। आर यू रेडी फॉर ब्रेक थ्रू एंड ब्लेसिंग्स। तो इसमें क्या है कि हमने अभी तक कुछ भी शेयर नहीं किया था जी, बिकॉज बीच में नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो दिस शेयरिंग इज टोटली लेफ्ट, बट आई विल मेक इट वेरी ब्रीफ and let you know. So the story, as usual, we shared that stories of the feeding of 5,000 people and more than and their families with 5 loaves and 2 fishes. So here we see that these people were following Jesus, and they wanted to hear, they wanted to listen to the word of God, they wanted to listen about the kingdom of God. So they had the hunger, they had the thirst for listening to the word of God. So do we have that hunger and thirst? ऐसे जैसे डेविड कहता है कि क्या मैं हिरनी के जैसे प्यासा हूँ प्रभु के लिए। सो क्या हम उस तरह की प्यास अपने प्रभु के लिए रखते हैं? Are we passionate about the Lord Jesus, and are we passionate about our Father, Lord and Holy Spirit? And if we have this passion, if we have this love in our hearts, that means we really belong to the Lord Jesus. Otherwise we are just pretending. So in this, before I tell this story, before I explain about the story as the Holy Spirit guides me, I want to share with you one testimony. That testimony is of Shailendra, who belongs to Dehradun. Yes, who belongs to Dehradun, and Shailendra one day through one Christian person heard that everybody, सबका न्याय होगा, एक दिन सबका न्याय होगा, जो हमने इस दुनिया में किया है उसका न्याय हमारे मरने के बाद होगा। तो शैलेंद्र ने सोचा ये क्या बात है, ये कौन से न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता है कि तुम्हारा जो है मरने के बाद न्याय होगा। तो ये शैलेंद्र इस बात को सोचने लगा और उसको सोचते सोचते उसको लगा कि हाँ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं तो बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा न्याय के सामने खुदा का न्याय जो है सहना पड़ेगा और मुझे बहुत सजाएं मिलेंगी। वो इस तरह सोच रहा था और सोचते सोचते उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आ गया। और जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हुआ क्या कि उसका नेचर बदलने लगा, उसका नेचर धीरे धीरे बदलने लगा और वो बाइबल पढ़ने लगा, प्रेयर करने लगा। और उसके घर में उसके पिताजी जो वो पंडित थे, और जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा बदल रहा है तो वो समझ नहीं पाए कि ऐसे क्यों, मेरा बेटा जो है वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है और पहले से बहुत अच्छा हो गया है, उसकी गंदी आदतें छूट गई, उसका गुस्सा होना छूट गया है और सब कुछ उसका, वो बहुत ही मतलब उनका बेटा बहुत लायक बेटा था, इवन दो IAS ऑफिसर था वो शैलेंद्र। और जब उसका नेचर बदलने लगा तो 1 महीना ऐसे बीत गया और उसके पिता ताजुब करते रहे कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। फिर उनसे रहा नहीं गया। 1 महीने के बाद उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देख रहा हूँ, ऐसा क्यों है, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है। तो शैलेंद्र ने कहा कि पिताजी, मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया है, मैंने यीशु को अपना लिया है
और उसी ने मेरा जीवन जो है परिवर्तन किया है, मेरा हृदय परिवर्तन किया है। तो उसके पिता ने कहा, सो इसका मतलब है कि तुम क्रिश्चियन बन गए हो? तो शैलेंद्र ने कहा, यस, मैंने जीसस को अपने जीवन में अपना लिया है। तो सिंस उसके फादर बहुत वो कट्टर पंडित थे, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, नहीं शैलेंद्र, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुमको क्रिश्चियन नहीं बनना है और अपने धर्म में ही रहना है। लेकिन उसने कहा, नहीं पिताजी, अब मैंने एक बार कदम उठा लिया है तो मैं पीछे नहीं हटना चाहता हूँ, और आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और क्या आपने कभी पाप किया है? तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा तू तो मुझे जन्म से ही देख रहा है, तूने कभी मुझे पाप करते देखा है? तो बेटा कहता है कि पिताजी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये आंसर दीजिए, आप मुझे यस और नो में आंसर दीजिए, क्या आपने कभी पाप किया है? तो जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, वो गॉड से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पिताजी को कोई ऐसा चमत्कार दिखा कि वो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। तो जैसे वो प्रार्थना कर रहा था, तो उसके पिता जो है वो घुटनों के बल बैठ गए और जोर जोर से वो एक बच्चे के समान रोने लगे। और रोते रोते जो है इतना रोए वो, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और फिर उन्होंने कहा अपने बेटे से कि मुझे भी तू अपने यीशु मसीह के बारे में बता, वो यीशु कौन है जिसने तेरा जीवन बदल दिया है, मैं भी उसी यीशु को अपनाना चाहता हूँ। सो प्रेज द लॉर्ड। बेटे के जरिए पिता प्रभु में आ गया और उस रूम में प्रकाश ही प्रकाश भर गया, क्योंकि होली स्पिरिट वहाँ पर थी और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। तो इस तरह से पिता ने भी प्रभु को ग्रहण कर लिया, और उन्होंने सारी मूर्तियाँ, सारी जो उनके हिंदू रीति की चीज़ें थी, वो सब कुछ वहाँ से हटा दी अपने घर से। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को बदल लिया। मतलब उन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियन बन गए हैं, हमने यीशु मसीह को अपनाया है, तुम सब भी यीशु को अपनाओ। उनके 8 बेटे थे और उनके परिवार में और भी बहुत सारे सदस्य थे। तो कुल मिलाकर 35 लोगों ने यीशु मसीह को उनके परिवार में ग्रहण कर लिया। सो प्रेज द लॉर्ड। एंड दिस बॉय मीन्स ये IAS ऑफिसर है, बट उसने यीशु को ग्रहण किया और उसने यीशु मसीह के महत्व को जाना, उसको जीवन मिला, और उसको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली कि उसने अपने पूरे परिवार को ही बदल दिया। तो धन्य है वो। इसी तरह हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारा जीवन बदलाव होता है और हमारा व्यवहार अच्छा होता है, तो क्या होता है कि लोग भी जो हैं वो आकर्षित होते हैं, और लोग पूछते हैं हमसे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारा व्यवहार इतना बदल गया है। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि हमसे भी पूछते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आर यू क्रिश्चियन, क्या आप क्रिश्चियन हैं? तो हम कहते हैं हाँ। तो उनको कुछ फर्क नज़र आता है। तो जब हमें कुछ फर्क नज़र आता है, हम जो है लविंग होते हैं, और गॉड सेज दैट लव वन अनदर, जब हम दूसरों पे दया करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, उनके दुख सुनते हैं, और हम उनके साथ साथ कभी कभी उनको तसल्ली देते हैं, और अगर वो प्रार्थना के लिए राज़ी होते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। अदरवाइज हम क्वाइटली उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो एक मसीही जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, एक साधारण व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। तो जैसे कि मेरा जीवन बदला प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, आपका जीवन बदला, और जितने लोगों को जानते हैं जो आगरा मसीह मंडली पे आते हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और धन्य है उनका जीवन जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है।
तो इसी वक्त मैं आपको नथानियल के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि नथानियल जो था वो बहुत दूर बैठा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और उन्होंने उसको नथानियल कह के बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं तुझे जानता हूँ। तो नथानियल बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि यीशु मसीह तो मेरे पास भी नहीं आए और ये मुझे कैसे जानते हैं। तो उस समय ऐसा होता है कि जब नथानियल एक यहूदी था, एक धर्मी व्यक्ति था और वो परमेश्वर को बहुत प्यार करता था, और जब वो परमेश्वर के बारे में सोच रहा था तो उसके करीब कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको बहुत करीब से देखा जब नथानियल प्रभु के बारे में सोच रहा था, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे देखा है, मैं तुझे जानता हूँ जब तू दूर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो इसी तरह जब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं और उसकी नज़दीकी में रहते हैं, तो प्रभु हमारे साथ होता है और हम दूसरों को देख सकते हैं, और जो दूसरे प्रभु में होते हैं हम उनको दूर से भी देख सकते हैं। तो ये होता है आत्मिक काम, कि हमारी आत्मा में हम दूसरों को पहचान सकते हैं कि कौन प्रभु में है और कौन प्रभु में नहीं है। इवन दो नथानियल ने जो है रीबॉर्न नहीं था वो, और जीसस ने उसको बोला रीबॉर्न होने के लिए, और तभी वो स्वर्ग के राज में एंटर हो पाएगा। तो ये हुई नथानियल की बात। और अब हम जैसे वो 5 रोटी और 2 मछलियों की कहानी के बारे में सोचें, जो कि आपने कई बार सुनी, कई बार पढ़ी भी होगी, तो उस कहानी में भी यही बताया गया है कि यीशु मसीह जो है वो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बता रहे थे कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, और साथ साथ में वो उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे थे, उसको प्रैक्टिस में भी दिखा रहे थे, क्योंकि वो उसी समय हीलिंग भी कर रहे थे। तो जो लोग बीमार आए थे उनके पीछे हील होने के लिए वो उनको हील भी कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, तो हमको उसको उसको क्रियान्वित करना है, उसको एक्शन एंड रिएक्शन में दिखाना है। हमारा जीवन जो है ऐसा होना चाहिए, मसीही जीवन, कि हम उसको प्रैक्टिस में दिखा सकें। तो वी शुड नॉट ओनली टॉक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड और बाइबल, बट वी मस्ट डू इट। तो इट इज़ बेटर टू डू, and by our love people will know that we are Christians, because Bible talks to us. Jesus says that my new commandment is that you love one another. So when we love one another, then people will know that we are Christians. So this is very important, and God is love and we should love each other. After that, we will see that people they who came, they were 5,000 people, and along with the people, their wives and children and other relatives also had come. So total about 20 to 25 people were there who followed Jesus, and they followed Jesus because they had the thirst to hear the word of God, and also they had the need to be healed, because they were sick with paralysis, with the evil spirits, and they were deaf, dumb, and lame. So many kinds of patients were there who came, who were brought by their relatives to Jesus Christ for the healing. So this was the need of the people. But when so many hours had gone, then Jesus realized, because Jesus was not only thinking about preaching, he was thinking about their physical needs also. So he understood that now the people must be hungry, so they should be given food. And he was not only bothered about their spirit, but he was bothered about their physical needs also. So he called his disciples, and disciples said to him, Jesus, send them away, because now it is too late. Let them go somewhere and arrange their food. But Jesus, what did he say? He said, you arrange their food. You give them food. So Jesus didn't want them to go and search, look for the food, but he himself wanted to provide the food.
So he asked his disciples if somebody had any food. So disciples came and said that one boy has two fishes and five loaves, five bread. So they brought that to Jesus, and Jesus looked up and he prayed. He prayed for the food, and he started giving it to his disciples, and he said, go and distribute it to others. So now what the disciples did, they took the food and they started distributing to those many people. How many hours it must have taken to distribute food to 20 to 25,000 people, those who were sitting in rows or in the lines. So you can imagine that so much time went in distributing the food, and these disciples were going on giving the food. Jesus said, of course, first of all, he thanked God for the food and then he gave it to the disciples. But in Jesus' hand, food did not multiply. When he gave it to the disciples, then food started multiplying, and disciples went on giving food to others, and so many people. So the the Bible talks to us, God says to us that as you distribute, as you give to others, you will get more blessings. If our hands are full, then how can we receive more blessing? When we keep on giving, when we give our things to others, then God also will keep on filling our hands. So this is what we learn from this lesson, that give, and God always gives the cheerful giver. So if we have food, more food, we must share with others. If we have more juice or drink, we must share it with others. And we should not think, oh, let us keep it in the fridge for tomorrow, for day after tomorrow. We'll keep on having it and we don't have to cook food. So we should not have that type of attitude. If somebody comes hungry, we must give food to them. If some poor person is there, we must give food and drink. And if somebody doesn't have the money and we have little extra money, then we can share even our money with the person. Suppose someone is sick, they don't have the money to buy their medicines, then we must give them the money from our pocket, whatever we can afford for the medicines. And if someone doesn't have clothes, then we must share our clothes, because Jesus said that if you have two clothes, two gowns, you must give one gown to another person who doesn't have. So this is how we learn that Jesus always wants us to share our things with others. And when we share, our blessings will increase. It will go on increasing. So this is the first point, that we have to share. When we share, then our blessings will increase. When we empty our hands, when we go on giving and our hands are going on being empty, then God goes on filling it. एंड when we have mercy, जब हम दूसरों पे दया करते हैं तो खुदा हमारे पर दया करता है. बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है. तो हमें दूसरों पे दया करनी चाहिए. कभी कभी जैसे हम लोग, आप लोग को पता होगा, जब हम किसी की मदद कर देते हैं तो कभी कभी हमारे बच्चे ही हमको गुस्सा करते हैं, डांटते हैं कि आपने क्यों उसको इतने पैसे दे दिए, आपने क्यों उसको इतनी अच्छी साड़ी अपनी दे दी, आपके काम आती. इस तरह से बच्चे भी हमें डिस्करेज कर सकते हैं, फ्रेंड्स डिस्करेज कर सकते हैं. बट हमें जो है वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है, और उसने क्या कहा है हमें उसकी आज्ञा माननी है. हमें लोगों को नहीं देखना है, हमें अपने परिवार वालों को नहीं देखना है, बल्कि हमको परमेश्वर को देखना है कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है और वो हमसे क्या चाहता है. सो अगर हम वो करेंगे, देन हमारे जीवन में सारी आशीषें और सारी ब्लेसिंग्स होंगी, एंड जितने भी ब्रेक थ्रूज हैं सफलता होगी, और जिस काम में हम हाथ डालेंगे उस काम को खुदा ब्लेस करेगा. तो ये भी वर्ड्स बाइबल में है कि जिस काम में तू हाथ डालेगा वो काम जो है सफल होगा. और परमेश्वर जो है वो हमारी रक्षा भी करेगा जब हम
उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसका बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है, उसके स्वरूप पे हम ढल जाते हैं, जो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, हमारे अंदर जीसस क्राइस्ट को देखता है और तभी वो पूछता है कि आप ऐसे क्यों हैं। और बहुत से लोग हमारे पास अननेसेसरली आते हैं, हम सोचते हैं अननेसेसरी है, बट वो अननेसेसरी नहीं होता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके हमारे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं, पर कभी कभी हम चिढ़ जाते हैं, हम सोचते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हम कितनी देर तक इसकी प्रॉब्लम सुनेंगे, ये तो रोज़ ही ये लेडी आ जाती है या ये भाई तो रोज़ आ जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके, मैं कितना टाइम इसको दे सकती हूँ। लेकिन उस बहन को या उस भाई को हमारे अंदर कुछ नज़र आता है, हमारे अंदर कुछ डिफरेंट नज़र आता है, तभी वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनको कुछ दे सकते हैं। हम उनके साथ प्रभु की बातें करते हैं, हम उनको सांत्वना दे सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सो हमको अपना टाइम निकाल के दूसरों को टाइम देना चाहिए, क्योंकि समय देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो हम अपना समय दे सकते हैं। एक बीमार के पास जैसे कोई नहीं है तो हम उस बीमार के पास 2 घंटे बैठ सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं, जिसका कोई भी रिलेटिव नहीं है। आजकल आप देखते हैं कि लोनलीनेस, पीपल आर सिंगल इन द वर्ल्ड, सो मेनी फैमिलीज दे हैव जस्ट वन पर्सन इन द वर्ल्ड and they are, they are so old, nobody is there to look after them. One lady, she became a skeleton in her room while watching the TV. How? Not by magic, but when she had heart fail, nobody knew, because she was all alone in the house. And when she did not go out for many months, then the police came and found out that she had become a skeleton, means all her flesh had gone and TV was on. So many people are alone in this world, so we can spend our time with them. जो समय है वो बहुत कीमती होता है, और अगर हम अपना समय किसी को देंगे उससे परमेश्वर बहुत ही खुश होगा। तो इसमें कोई हमें पैसे नहीं खर्च करने होते हैं, ना तो हमें अपना कोई सामान देना होता है। जस्ट हम उसके पास जाके बातें कर सकते हैं और बाइबल की बातें कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। वही बहुत बड़ी आशीष उस पर्सन के लिए होगी और गॉड हमको बहुत आशीष देगा। तो ये है पहला पॉइंट कि हमको परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप होना चाहिए, उसके समान होना चाहिए, और उसके पास आने से हमारा जीवन बदल जाता है। हम ज्योति में आ जाते हैं और हमारी ज्योति को देख के दूसरे भी ज्योति में आ जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है कि हमें हर समय धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाइबल में बार बार लिखा है praise the Lord and give thanks to him, and David says again and again, give thanks to the Lord. And so many passages of the Bible say to give thanks to the Lord. So when we give thanks to the Lord, God is honored and God feels happy that my children are saying thank you to me. My children are happy what I am doing for them. जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ बाप कोई चीज़ ला के देते हैं, कोई टॉय ला के देते हैं, और वो अपने माँ बाप को किस करके थैंक यू बोलते हैं, तो माँ बाप कितने खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा मुझे थैंक यू बोल रहा है। पर अगर बच्चे के बर्थडे पे माँ बाप कोई अच्छी चीज़ लाए और बच्चा उसको पसंद नहीं करता, फेंक देता है, तो क्या होता है, माँ बाप का दिल टूट जाता है। तो जो भी चीज़ हमको खुदा देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें उसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। और हमारी हर सांस के लिए हमें थैंक्स बोलना है, हमारे हर दिल की धड़कन के लिए हमें थैंक्स बोलना है, हर क्षण के जीवन के लिए हमें थैंक्स बोलना है। कुछ लोग कहते हैं हम किस बात के लिए थैंक्स बोलें गॉड को, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें थैंक्स बोलना है। आईसीयू में ऑक्सीजन लेने के लिए हज़ारों रुपए लग जाते हैं एक बीमार व्यक्ति को, लेकिन खुदा तो हमको कितने कितने टन्स ऑफ ऑक्सीजन फ्री में ही देता है, उसके लिए हमें थैंक्स बोलना है।
पानी के लिए थैंक्स बोलना है, खाने के लिए बोलना है, हर चीज़ के लिए हमको परमेश्वर को थैंक्स बोलना है। हमें हेल्दी रखने के लिए थैंक्स बोलना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे तो पेट में खराबी है, हमारे पेट में दर्द रहता है और एसिडिटी रहती है, तो हम किस बात के लिए थैंक्स बोले, गॉड तो मुझे ठीक नहीं कर रहा है। तो उस समय हमें समझाना है उस व्यक्ति को कि देखो, तुम्हारे पेट में खराबी है, लेकिन तुम्हारे शरीर के दूसरे भाग तो स्वस्थ है ना, उसके लिए थैंक्स बोलो। सो जब हम इन सब चीज़ों के लिए थैंक्स बोलते हैं तो खुदा हमको बहुत ब्लेस करता है और हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू आता है, दैट मीन्स चंगाई आती है। क्योंकि जब हम थैंक्स बोलते हैं तो हमारे अंदर से पॉजिटिविटी निकलती है, हम पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं जब हम हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो चंगाई है, जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे जीवन में, वो जल्दी आती हैं। क्योंकि जब हम थैंक्स बोलते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, दैट मीन्स बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है। एंड बाइबल कहती है रोमन्स 8:28 में कि गॉड वर्क्स फॉर आवर गुड व्हेन वी लव हिम इन एवरीथिंग। गॉड वर्क्स फॉर आवर गुड इन एवरीथिंग व्हेन वी लव हिम। So this thing teaches us that we have to thank God at all times. Whether the situation is good or bad, we have to thank God. Situation can be bad. Suppose you have missed your train or you have missed your plane and you feel so odd that see, so much money is lost, I have missed my train or plane. But after some time you hear in the news that plane has crashed or the train met the accident. So behind, God wanted to save you, that is why your train or plane was missed. So we have to thank God even for the bad situations. And when Abraham was 99 years old, he did not get a child, but still he had the hope. He had the not hope. He had the trust that he would become the father of nations, and because this was God's promise. So we have to believe in God's promises. Not we don't have to look at the situation, that in this situation, how can I become a father? How can my wife become a mother when she is 90 years old? So we have to look at God all the time, and we have to remember God's promises always, and do not become disheartened or do not go into depression that this thing is not going to happen to us. So this is what God wants us to be thankful to Him all the time. And then third point is that we have to love and care for the people. Love and care for the people, that some of it has come in the first point also. I remember Good Samaritan. He was such a nice person that he saw that wounded person on the road who was beaten by the dacoits, and all the things were taken away by dacoits from him. Then this Good Samaritan came and helped him. So he showed his love, he showed his care, he showed his compassion on that man, on that wounded man, and he took him to the and he took him to the hospital and even paid the money for that person. So very few people do like this today. If we see, nobody does like this. If we see some people on the road, they are having some problem, hardly somebody goes to help that person, because people have become so selfish. They think, oh, if I go and help that person, I may have to pay the hospital bill, I have to give my time, then if it is accident case, then police may come and waste my time. So these are the things what person thinks these days, even though in the olden time people were very kind and very compassionate, and they were ready to give their time to others. And whenever something breaks, this is what is the third point. When the things break, then the blessings come. For example, when Mary brought her asbestos bottle
to Jesus. asbestos bottle में क्या था, इत्र था, और Mary wanted to anoint Jesus before his crucifixion. Mary आई और उसने वो एस्बेस्टस बॉटल को तोड़ा और उसके इत्र से को जीसस के पाँव पे डाला और उसको अपने बालों से पोंछा. सो मेरी को क्या ब्लेसिंग मिली? उसको ये ब्लेसिंग मिली कि उसका नाम हमेशा बाइबल में रहेगा और उसको हर बार याद किया जाएगा. तो isn't this a big blessing Mary got? And she gave herself, she gave her everything, whatever money she had, she bought that इत्र, and उस इत्र से उसने जीसस को अनाइंट किया. तो हर चीज़, हर ग्लोरी के लिए, हर अच्छाई के लिए किसी न किसी चीज़ का टूटना ज़रूरी होता है. जैसे कि एक सीड है, उस सीड को ज़मीन में जब बोया जाता है तो सीड जो है, सीड एकदम समूचा नहीं रहता है, वो टूटता है पहले, और जब टूटता है तब उसमें कोपल निकलती है और फिर वो एक बड़े पौधे या बड़े वृक्ष के रूप में आ जाता है. तो जब सीड टूटता है तो उसका बलिदान होता है, तब जो है वृक्ष बनता है, और जो वृक्ष जो है दूसरों को फल देता है और दूसरों को छाया देता है. तो इस तरह हम देखते हैं कि टूटना भी बहुत ज़रूरी है. और अगर एक अंडा टूटता है, ऐसे नहीं कि हम फ्रिज में रख रहे हैं वो गिर गया, बट जब मुर्गी अंडे पे बैठती है और जब उसमें से चिक्स निकलते हैं, उसके पहले क्या होता है, वो धीरे धीरे टूटता है. तो जब वो टूटता है तब उसमें से चिक्स निकलते हैं, और मुर्गी जो मदर हैन है वो उनको अपने पंखों तले छुपा के रखती है. जैसे गॉड हमको अपने पंखों तले एक माँ के जैसे छुपा के रखता है, उसी तरह से मुर्गी भी करती है. तो हम देखते हैं कि किसी चीज़ का टूटना भी आवश्यक होता है हमारी अच्छाई के लिए, या हमें कुछ सिखाने के लिए, या उसी सिचुएशन में जब कोई दूसरा पर्सन है तो उसको बचाने के लिए, उसको समझाने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करके और उसके साथ हमें अपना एक्सपीरियंस बांटने और प्रार्थना करने के लिए. तो इस तरह से टूटना भी ज़रूरी है. और जब हम टूटते हैं तो हमको गॉड को बुरा भला नहीं कहना है. हमें ये कहना चाहिए कि परमेश्वर आपका क्या उद्देश्य है इस बीमारी में, या इस परेशानी में, या इस गरीबी में, या इस फेलियर में. गॉड आपका क्या प्लान है, आप मुझे दिखाइए. ये नहीं कि हम गॉड को बुरा भला कहने लगे और कहने लगे कि गॉड ने तो हमें छोड़ दिया है और हम जो हैं अब किसी काम के नहीं रहे. ऐसे नहीं कहना चाहिए. ये चीज़ हम धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि एकदम से हम नहीं सीख जाते. जैसे मैंने भी बहुत ही मुश्किलों से ये बात सीखी है कि बीमारी के समय भी हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए और उससे बोलना चाहिए, खुदा ये तेरी इच्छा है, तू जो चाहता है वो कर, और मुझे बता कि क्या उद्देश्य है तेरा. और हम इसी कठिनाई की अवस्था में शैतान से लड़ना भी सीखते हैं कि शैतान हमको परमेश्वर से मांग के हमारी परीक्षा भी कर सकता है. तो हम उससे लड़ना सीखते हैं और परमेश्वर की दुहाई देना सीखते हैं. तो जो बुराइयां हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, उनके लिए हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेज गॉड करना चाहिए और उससे शक्ति मांगनी चाहिए कि हमें इस मुसीबत से लड़ने की सामर्थ्य दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु. तो ये बात है जो कि तीसरे पॉइंट में है कि हमको टूटने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो टूटे हुए दिल जिनके होते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनके नज़दीक होता है. डेविड का ये कथन है कि टूटे हुए लोगों के पास, टूटे हुए दिल के लोगों के पास परमेश्वर होता है. क्या ही धन्य हैं वे लोग जिनके करीब परमेश्वर होता है और बहुत नज़दीक होता है जब वो टूटे हुए होते हैं. इस तरह से हमने 3 लेसन्स यहाँ पर, 3 पॉइंट सीखे जिससे कि हमारे जीवन में सफलता और ब्लेसिंग्स
मीन्स आशीषें आ सकती हैं। एक तो है कि जीसस का स्वरूप अपने अंदर ले लेना, जीसस का कैरेक्टर अपने अंदर ले लेना, और दूसरा है कि हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना, और किसी बात के लिए हमें उसको बुरा भला नहीं कहना है, क्योंकि हर बात में कोई अच्छाई छुपी होती है, और हर बुरी चीज़ में भी अच्छाई होती है। फिर तीसरा पॉइंट हमने देखा कि गॉड जो है वो हमको तोड़ते हैं कभी कभी, हमें कुछ सिखाने के लिए, या हमें मजबूत बनाने के लिए, या हमको परमेश्वर की ग्लोरी दिखाने के लिए, या हमें एक विटनेस बनाने के लिए, कि हम एक गवाही बन सकें। जब हमारे पर कुछ बुरा बीतता है और हम बहुत मुसीबतों से गुजरते हैं, तो फिर जब हम ठीक होते हैं तो हम गवाही देने लगते हैं, और उस गवाही से कितनों का जीवन बदल जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है। सो मेरे प्रियो, आप कभी भी किसी भी मुसीबत से ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। 365 टाइम्स इन द बाइबल ही सेड दैट आई एम विथ यू, फियर नॉट, आई एम विथ यू। सो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने ये 3 पॉइंट सीखे, और मैं सोचती हूँ कि इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा आशीष मिली है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सिमिलरली आपको भी इससे आशीषें मिली होंगी। तो आइए हम प्रार्थना करें। Dear gracious, loving Heavenly Father, we come into Thy presence. We praise You and thank You for the guidance of Your Holy Spirit, dear Lord. Thank You for speaking to us. Thank You for teaching us great lessons from Your Word, from the Bible, dear Father, from the experiences we had. Dear Father, thank You so much for reconnecting this network so I could complete my sharing, and bless all the people who will hear this sharing, and bless Sister Grace Perrin and Shabnam ji who were here, and in the beginning some people came. Bless them also, and bless those who will listen to this message later on. Dear Father, those who are sick, You have Your healing upon them, and those who are having financial problem, give them money, dear Father. Those who are in any trouble, dear Father, have mercy on them, have mercy on us, and help us to obey You all the time, always. Help us to thank You always. Help us to glorify You always from our lives, dear Father. Thank You so much. And bless Brother Anupam and Shabnam ji, and thank You that she helped me in completing my speech today. Thank You so much. For we ask all this in Jesus' name. Amen. So thank you for being with me, Shabnam ji and Sister Grace Burden, and all the people who are behind. I thank you very much. And now, till we meet again, Lord bless all of us. Thank you. Good night.